Hi job seekers, welcome to the right time manpower solutions. आपका राइट टाइम मैनपावर सॉल्यूशन में सहर्ष स्वागत. माय नेम इज परमेश्वर शिंदे. आई एम डायरेक्टर ऑफ राइट टाइम मैनपावर सॉल्यूशंस. So in this video I will talk about how to get promotion in private company or how to get promotion in company or best tips for get promotion in any job. Okay, so for getting the promotion in private company or for getting the promotion in your company or for getting the promotion at your place, okay, at your present designation. So every organization there is a organization structures. Organization structures means first is the board of chairman, board of director, then managing director, then general manager. General manager means marketing department general manager, then engineering department general manager, then HR department general manager, then production department general manager, then quality department general manager, then purchase department general manager, then store department general manager, then supplier development department general managers. Means every department there is a top management general manager. After that deputy general manager DGM. After that senior manager. After below on that manager, below on that senior executive or senior engineer, then junior executive, then below on that trainee executive or trainee engineers. Okay, so if any candidate, any professional candidate want to get promote in the respective department at their workplace, in their company, then every organization there is a performance management system. Okay, and HR department controls on the performance management system in every department. That is, we can say, the performance appraisal system. Okay, so main intention of the performance appraisal is to develop the organization, to promote the employee from one post to another post, from lower post to higher post. Okay, for enlarging the job, for increasing the skill in the employees. Okay, and every organization there is a organization development, then there is a career planning, career succession planning. If employee join in an organization at entry level in every department, then there is a proper channel for career and succession planning for the respective human resources employees. Okay, so in this video we are talking about how to get promotion. Okay, in at respective place in department or company, there is a various performance criteria for getting the promotion, for getting the through various appraisal systems. Okay, there are 360 degrees appraisal systems also available. There are various research methodologies, various scientists have designed the various defined the various appraisal systems. Okay, so general is that when the persons will is working on that organization in a year, so person must think that ki I will not take a single leave. So as per the company policy, there is a as per the company policies, as per the Factories Act, there is minimum 21 to 30 paid leaves as per the company policy. When you require the urgent need, when there is a urgent need in your family, if there is a necessary work, then you can take a leave. Okay, but your attendance is very important. You must be attend, your attendance must be nearly equal to 100% in that company. After that, your quality of work,
where you are working, you must give the quality as per the specification of the company. After that, your behavior with the company, your behavior means you have to understand that कि when you are working in that company, you must create the sound industrial relation between your colleagues, between your boss. आप ये कि ध्यान में रखो, आप बॉस कितना ही आपको गालियाँ भी दे रहा है समझो, क्योंकि बॉस कभी गलत नहीं होता और वो कभी भी आपका भला ही चाहता है, और आप में कुछ माइंड में कुछ ऐसा स्पार्क होना चाहिए जो कि आपको परिवर्तन लाए, वही बॉस की पूरा कोशिश रहती है। जो भी वो जॉब में, आपके डिपार्टमेंट में, आपके ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो भी स्किल है, वो आप स्किलफुल होने के लिए बॉस पूरा कोशिश करता है, पूरा मोल्ड करता है। तो बॉस कितना ही हार्ड होने दीजिए, बॉस कितना ही स्ट्रिक्ट होने दीजिए, आपका रिलेशन उनके साथ एक स्मूथ होना चाहिए। एक दिन उनको ही लगना चाहिए कि नहीं, ये बंदा बहुत अच्छा है, वो बंदा को मैंने बहुत डांटा, कभी कभी गुस्साया, कभी उनने काम में गलती की, उसको गालियाँ भी दी, लेकिन उन बॉस ये जो बंदा है ना, ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, दिल से काम करता है। ये ऐसा बिहेव आपने करना चाहिए। उसके बाद जो कंपनी है, कंपनी को आप कंपनी आपका एक घर जैसा आप समझना चाहिए। एक कंपनी एक भगवान जैसा एक मंदिर है, जो भी आपके मन में, जो भी जिस भगवान का जिस आदमी को आप भगवान मानते हैं, उसका जो माइंड में टेम्पल है, वो टेम्पल आप समझना चाहिए, आपका फैमिली जैसा समझना चाहिए, और वो उसके साथ काम करना चाहिए। क्योंकि वो कंपनी आपको एक एम्प्लॉयमेंट देती है, एक महीने में या डेली, वीकली या मंथली जो भी है, मैक्सिमम वेजेस पीरियड, वो आपको पेमेंट देती है, मंथली पेमेंट देती है। तो उससे बड़ा कोई नहीं होता दुनिया में। क्योंकि आपको भी मालूम है, जब आपको 100 रुपये की ज़रूरत पड़ी, सब मुझे कभी ज़रूरत पड़ी, आप किधर भी मांगो, हमारा फैमिली परिवार छोड़ के, या हमारा क्लोज रिलेटिव छोड़ के, या क्लोज फ्रेंड छोड़ के, आपको कोई नहीं देगा। आप किसी को 100 रुपये मांगे तो उसका 100 रीज़न बताएंगे, लेकिन कंपनी आपको महीने में कम से कम एज पर द मिनिमम वेजेस एक्ट जो भी महाराष्ट्र में चल रहा है, कम से कम आपको 12 साढ़े 12 हज़ार से जब मैक्सिमम 20,000, 40,000, 50,000, जो भी 1 लाख जो भी सिटी से वो देती है आपको कंपनी मंथली। तो कंपनी के ऊपर कोई बड़ा नहीं है आपके लाइफ में। तो वो कंपनी आपका बोल के कंपनी में काम करो। कंपनी के बारे में कभी निगेटिव मत बोलिए, और कंपनी के टीम के बारे में, बॉस के बारे में कभी निगेटिव मत बोलिए, क्योंकि मैक्सिमम 90% उसके विरोध होता है। जो मैं बोल रहा हूँ वही नहीं होता, उसके अपोजिट 90% होता है। 90% लोग जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी में निगेटिविटी फैलाते हैं, डायरेक्टर के बारे में निगेटिव बात करते हैं, कंपनी के बारे में डायरेक्ट निगेटिव बात करते हैं, कंपनी में ऑन टाइम रिपोर्टिंग नहीं करते, कंपनी में एब्सेंटिज्म का रेट बढ़ाते हैं, तो कैसा प्रमोशन मिलेगा। इसलिए जो भी ये जो इम्पोर्टेंट स्टेप्स है कैंडिडेट ने फॉलो करना चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट में जो भी जॉब में क्रिएटिविटी है, जो भी काइजन रहता है, वहाँ 5 सिस्टम रहता है, जो भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट रहता है, उसमें कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट लेना चाहिए। उसके बाद जो रिसर्च है, रिसर्च मेथोडोलॉजी सिस्टम हर एक डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंटेशन किया रहता है। वो उसमें जो सिस्टम चल रहा है, वो सिस्टम में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ रिसर्च, जिसको कि अननोन टू नोन, जो आपको पहले मालूम नहीं था सिस्टम ने, लेकिन ये मैंने सिस्टम में कुछ क्रिएटिविटी की है, और उसके हिसाब से कुछ हम हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हमारा क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हमारा कुछ टाइम कंजम्पशन कर सकते हैं, और हमारा एक्सीडेंट रेट, कुछ सेफ्टी कुछ बढ़ा सकती है। इस बारे में आपकी सोच होनी चाहिए कंपनी के बारे में। और उसके बाद आप कंपनी में काम करते समय और कुछ आपको पढ़ाई करना है। कंपनी में कुछ जो भी कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ रहती है, कुछ कोर्सेस रहता है, कंपनी पार्ट टाइम कोर्सेस या कुछ सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं इंटरनल, तो उसमें एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए। और कंपनी में
कैन डू अप्रोच होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ काम। क्योंकि क्या होता है कंपनी में, समझो आप मैनेजर है, आप इंजीनियर है, लेकिन कभी कंपनी में समझो यहाँ चिट्ठी पड़ गई है, कचरा पड़ गए है, कुछ ऑयल पड़ गए, तो वहाँ नहीं ऐसा बात करनी चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इंजीनियर हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और मैंने MBA किया है, मैंने BSc किया है, मैंने HSC किया है, ऐसा नहीं बात होना चाहिए। जब भी आपको कंपनी में, आपके सराउंडिंग में कुछ भी आपको लगता है, वो रोल आपको निभाना पड़ेगा। आपको लगा है कंप्यूटर थोड़ा गंदा हो गए, धूल धूल बैठी है, तो जब ऑफिस बॉय आ जाएगा, हाउसकीपिंग का आदमी आ जाएगा, वो तो काम करेगा, उसका काम है। उसके पहले दैट इज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे उस पर पहले बैठना है, तो वो पहला साफ करना पड़ेगा। कंपनी में कुछ मशीन शॉप में, डिपार्टमेंट में कुछ ऑयल गिराया है, या कुछ गंदगी है, कुछ चिट्ठी पड़ी है, या कुछ पेपर पड़े हैं, तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा घर है और मैं ये पहला काम करूँगा। तो ये टिप्स आप फॉलो कीजिए। 100% आपको जो भी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मैंने बताया आपको, 100% अटेंडेंस, उसके बाद ऑन पंक्चुअलिटी ऑन टाइम, उसके बाद गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन योर बॉस विथ एंड एम्प्लॉइज, उसके बाद यू हैव टू फॉलो द कंपनी स्टैंडिंग ऑर्डर्स, उसके बाद यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ योर वर्क, प्रोडक्टिविटी, देन आफ्टर दैट you have to you have to you have to do the creativity in your job, you have to do the research in job, you have to you have to take the participation in learning, career learning and career and succession planning in your company. These are the activities for improving your performance, for getting the promotion at your respective place, and getting the promotion in private jobs. Thanks lot for watching this video, and after watching this video please like and subscribe this video. Thank you.